Good afternoon. I myself, Dr. K.K. Srivastava, chemistry lecturer, Ayodhya, Faizabad. I will start topic solid state chemistry. What do you mean by solid? What do you mean by solid? Solid means it has definite shape, definite volume. Between two molecules, intermolecular space is negligible, and intermolecular force is maximum. Its particle cannot move from one place to other place, only vibrate from their mean position. So it represents definite shape, definite volume. Just like solid are beaker, this is the solid. Inside beaker, this is the sand. It is also a solid. This is also a solid. This is the bowl, plastic bowl. This is also a solid. This is the conical flask. This is the glass. It is also a solid. This is the alum. Alum, K2SO4, Al2SO4 whole thrice into 24:2. It is also a crystalline solid. So this is the solid. So we further classified solid in two forms. Solid are classified in two forms. First, crystalline solid. Crystalline solid. And second is amorphous solid. Amorphous solid. First, I will discuss crystalline solid. Crystalline solid in which particle, atom, molecule are arranged in definite order. It shows anisotropic property. Anisotropic property means physical property changes according to direction of crystal particles. That is thermal conductivity, refractive index. These are changes in crystals. It is sharp melting point and boiling point. Just like I will see you by figure. In crystalline solid, molecules are arranged in different order. Just like this. This is arranged. This is the crystalline solid, in which particles are arranged in different order. In which particles are arranged in different order. In which particles are arranged in different order. This is the crystal. This is the crystal. It has fixed melting point and boiling point. It shows anisotropic property. Anisotropic means जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल. That is, refractive index changes, thermal conductivity changes. I will show by example which is crystalline solid. Just like you see, this is the alum crystal. Its formula is K2SO4, Al2SO4 whole thrice
into 24:4. Its particles are arranged in definite order. It gives definite shape. So it shows crystalline solid. Just like you see, this is the glass, small glass made from steel, metal. Metal is also a solid. It is also a crystalline solid in which particles are arranged in definite order. There are a number of examples, just like bowl, copper, silver, gold. These are the crystalline solid. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसके पार्टिकल डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होती हैं, जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट शार्प होते हैं, मतलब डेफिनेट होते हैं, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं. When we cut with knife, it shows sharp edges and smooth edges. This is the quality of the crystalline solid. Now we further discuss another type, amorphous solid. Amorphous solid, in which constituent particles are arranged in irregular manner, not in regular manner, arranged in irregular manner. That is in dispersed form. Particles are arranged in dispersed form. Just like you see, in case of sand, this is the amorphous solid, in which molecules are not arranged in definite order. So it is called amorphous solid. It shows isotropic property. It cannot cut with knife, with sharp edges and smooth edges. It has no definite melting point and boiling point. So amorphous solid shows indefinite molecule, indefinite melting point and boiling point. It has no flowing tendency. It has flowing tendency because this is the beaker. Glass is an amorphous solid. It has fluid tendency because it is a supercooled liquid. Glass is a supercooled liquid. So it shows amorphous solid. Plastic. This is the bowl. This is amorphous solid in which particles are not arranged in definite order. So it is an amorphous solid. There are a number of examples. Just like this is the marker, it is also amorphous solid. रबर, these are amorphous solid. तो मैंने आपको क्या बताया? हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया. amorphous solid क्या होता है? Now we discuss about unit cell क्या होते हैं. What is the unit cell? So I will discuss about unit cell. Unit cell. Unit cell. What is the unit cell? Just like this is the duster. Suppose करते हैं this is the duster. कोई इसका पार्ट ले लें. जैसे एक पेपर ले लेते हैं. प्लीज पेपर. Give me paper. Unit cell क्या होता है? Unit cell. जैसे you see, this is the cuboid. This is the cuboid. This is the cuboid. Just like you see, this is the paper. This is the, suppose ये रेक्टेंगुलर पेपर बना लेते हैं इसको ऐसा इस तरीके से रेक्टेंगुलर बना लेते हैं.
सपोज करते हैं इसके हमने इस पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं, ये पार्ट मैंने लिया, देखिए आप लोग, ये पार्ट, इतना पार्ट मैंने फोल्ड कर रहे हैं इसका, ये पार्ट, ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ये देखिए कितना पार्ट हम ले रहे हैं, इसको फोल्ड करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट, इसको कितना पार्ट हम फोल्ड, इस पार्ट को जब फोल्ड करेंगे हम, इसको फोल्ड करने इसी पार्ट को ले रहे हैं, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, when it is rotated again and again, when it is rotated again and again, ये revolve again and again, we obtain complete crystal. ये जो छोटा सा पार्ट है, दिस इज का यूनिट सेल, इसके रिपीट करने से when we repeat over and again and again, we give complete structure of the crystal. Such small part, this small part, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहते हैं इसे। इसको रोटेट करने से मुझे ये रेक्टेंगल का कंप्लीट पेपर का स्ट्रक्चर मुझे क्या होता है? मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं इस क्यूबॉइड का एक पार्ट ले ले, हम इसको रोटेट करें बार बार, इसको रोटेट करें, जिससे इस क्यूबॉइड का एक कंप्लीट क्रिस्टल ऑब्टेन होता है। वी ऑब्टेन कंप्लीट क्रिस्टल व्हेन वी रोटेट द स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। सच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल आर क्लासिफाइड in three form, classified in three form, classified in three form. First, simple cubic cell, simple cubic, unit cell. This is called SCC. Second is body centered cubic cell. Body centered unit cell. BCC. Short form में BCC. Third है face centered unit cell. This is also called FCC insert. तो यूनिट सेल की जो था मैंने एक्सप्लेन किया, जो दिस यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री फॉर्म: सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल. नाउ वी कैन एक्सप्लेन इन डिटेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, when each corner of the cuboid contains each atom, each corner of the cuboid contains each atom, when each corner of the cuboid contains single atom, then each atom is contributed by 1/8 part. Each corner is contributed by 1/8 part. Just like you see, this is the room. It has 4 corners. Then each corner, this corner, is contributed by 1/4 part. So here is a 8 corner. Then each corner is contributed by 1/8 part. जैसे एक आपका कोई आप ले लीजिए आप, दिस इज द सपोज क्या मैंने ये आपका ये मैंने बना दिया आपको, दिस इज द एप्पल, दिस इज द एप्पल. Now we cut into 4 cut.
इसको 4 पार्ट में कट कर देते हैं। तो ईच पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय each part is contributed by each part is contributed by 1/4 part. Is it clear? In cuboid it has 8 corners, so each corner is contributed by 1/8 part. So number of atom per unit cell कितने बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू टोटल कार्बन कितने 8 है 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम। तो पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? एसईसी में सिंपल क्यूबिक सेल में 1 एटम। Is it clear? कोई डाउट किसी को? Now we discuss in another type of unit cell, body centered unit cell. You will see here. Body centered unit cell. This is also called BCC. Now we make a structure of cuboid. In body center cubic cell, each corner of the cuboid contains 1 atom. हर एक कार्नर पे एक एटम है, ये एक एटम है। और 1 atom also present at the center of the whole body, whole cuboid. इससे पूरी बॉडी के सेंटर क्या होता है? नाभि होती है हमारी। दिस इज द सेंटर ऑफ द आवर बॉडी, नाभि होती है, उसको सेंटर कहते हैं हमारे। वैसे हर एक चीज का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे अर्थ का सेंटर होता है। उसी तरीके से बॉडी सेंटर यूनिट सेल मींस क्या होता है? हर एक कार्नर पर एक एक एटम तो होंगे ही होंगे। एक एटम क्या होगा? पूरे बॉडी के सेंटर पर है। पूरे बॉडी के सेंटर क्या होगा? सपोज क्या ये हमारा पूरे बॉडी के सेंटर, यहां पर एक एटम होगा। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इस केस में पर यूनिट सेल, इस केस में क्या होगा? एक तो कार्नर वाला हो जाएगा 8 into 1/8, तो कार्नर एटम 1/8 पार्ट से कंट्रीब्यूट करेंगे 8 कार्नर से। और एक एटम हमारा कहां पर प्रेजेंट है बेटा? बॉडी के सेंटर पर। एक एटम यहां पर कितना हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल एटम कितने हो गए हमारे? बीसीसी में कितने होंगे? 2 एटम। Now we discuss another third type of unit cell, face centered unit cell. Face centered unit cell देखिए आप। Face centered unit cell. Face centered unit cell. This is also called FCC. Again we make a structure of the cuboid. इसे बना लेंगे हम। अब देख लीजिए आप लोग, ये 8 कार्नर्स होगा। फेस कितने होते हैं इसके? एक फेस ही होगा, ये पूरा फेस हो गया, ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये बड़ा वाला फेस हो गया, और एक फेस ये हो गया। जैसे लूडो होता है, लूडो की जो पासा होता है उसमें क्या होता है? 6 फेस होते हैं।
3 फेस हमारे हैं, तो कार्बन पर एक एक एटम है, यहां पर क्या होगा, कार्बन पर एक एक एटम होता है, कार्बन कंटेन्स 1 एटम, तो ये कार्बन कंटेन्स ईच एटम and each diagonal of the faces contains one atom। मतलब इस क्यूबॉइड के हर एक फेस के डायगोनल के सेंटर पर जो होता है एक एक एटम, तो डायगोनल सेंटर इसका डायगोनल खींच लीजिए आप, ये डायगोनल होगा, ये जहां क्रॉस करेगा यहां एक एटम होगा, ऐसे यहां पर आप डायगोनल खींच लीजिए, ये जहां क्रॉस करेगा ये एक एटम यहां पर होगा, ये फेस का डायगोनल खींच लीजिए, तो हर एक फेस के जो होगा डायगोनल के सेंटर पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा, तो यहां पर कर दीजिए आप इस तरीके से, एक एटम यहाँ होगा, एक ये बड़ा वाला जो हमारा इसका सेंटर के लिए सपोज के यहाँ पे एक एटम होगा, एक ये इसका डायगोनल की लिए एक एटम ये होगा। इस तरीके से हमारा जो है क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 8 कार्बन होते हैं और 6 फेस होते हैं, तो 8 कार्बन पर एक एक एटम है और 6 फेस के डायगोनल के सेंटर पर जो है एक एक एटम होता है। तो देखिए आप कार्बन एटम, कार्बन each carbon is contributed by 1/8 part. Each phase is contributed by देखिए हर एक फेस से 2 फेस लगा हुआ है, देखिए ये आपका देख लीजिए आप, इससे ये फेस लगा हुआ, ये देखिए ये फेस है, इसके सामने ये, हर एक फेस से 2 फेस लगे हुए, मतलब ईच फेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट, तो 6 फेस कितने से कंट्रीब्यूट होगा, 6 फेस कंट्रीब्यूटेड बाय 6 into 1/2 equal to 3, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर एटम पर यूनिट सेल इक्वल टू 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4 एटम। तो एफसीसी में कितने एटम हुए? इन अनदर टाइप, जैसे फेस वो एज सेंटर पर अगर एटम हो तब कितने से कंट्रीब्यूट होगा? एज सेंटर, एज कितने यहां देखिए, ये एज कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एज सेंटर का। एज सेंटर पर देख लीजिए आप, ये फेस सेंटर होगा, अब एज सेंटर होता है आप, एज सेंटर मतलब बेटा क्या होता है? ये देखिए, ये एज है, इसका सेंटर ये होगा, ये एज होता है, इसका सेंटर ये होता है ना, ये एज है, इसका सेंटर ये है ना, ये एज सेंटर कहलाता है, इसका एज सेंटर ये, एज का सेंटर ये एज है हमारा, ये एज है, इसका सेंटर ये है हमारा, इस तरह ये एज सेंटर होता है। तो ईच जो होता है ये फेस में क्या होता है? एज सेंटर कितने कंट्रीब्यूट है भाई? देखिए क्या, 1 2 और 3 और 4 है, तो ईच एज सेंटर contributed by 1/4, कितने से कंट्रीब्यूट होगा? 1/4। और कितने केस पर कितने एटम होते हैं? 12 एज सेंटर होंगे, कितने होंगे? 12 एज सेंटर होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इसका 2 क्या हो जाए? 12 into 1/4, मतलब कितने एटम हो जाएंगे? ये एज सेंटर वाला कितने हो जाएगा हमारा? कितने एटम हुए एज सेंटर पर? 3 एटम। तो
ये मैंने आज आपको सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन किया कि सॉलिड की टाइप मैंने बताया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। फिर मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि यूनिट सेल क्या होता है, कैसे कपलिंग क्रिस्टल कैसे बनते कैसे हैं, उस यूनिट सेल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, पेपर के थ्रू मैंने समझाया, कोशिश किया मैंने, इसके थ्रू समझाने की कोशिश किया मैंने आपको। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के लिया मैंने, सिंपलिटी यूनिट सेल, बाउंडेड यूनिट सेल, फेस सेंटर की यूनिट सेल, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। फिर एस सेंटर पे जो आइटम होते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट होते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर बताया, क्योंकि IIT में इसकी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT नीट में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज इंट्रोडक्टरी मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया। कल मैं इसके आगे फर्दर जो है टॉपिक डिस्कस करूंगा, डेरिवेशन में बताऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के श्रीवास्तव, डॉक्टर के श्रीवास्तव। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।